Hey friends, can you see that? Oh my god! Yes, I have Wow! passed USMLE Step 1. Yay! I'm literally feeling so much relaxed and relieved right now to be finally on the other side of this Step 1 exam journey. So in this video, I'm going to take you behind the scenes of my entire experience in preparing for this USMLE Step 1 exam. The study strategies to the exam day nerves, what worked and what didn't, so you can prepare effectively for this exam. So let's get into it. First, rewind a little bit and talk about my USMLE journey. Why I took USMLE Step 1 exam after my house job in my post-graduation period and not during my MBBS. What was my timeline? Because we need to understand the context in which a person is pursuing their USMLE journey, and we should not compare our USMLE journey to someone else's USMLE journey. During my MBBS, I wanted to give USMLE Step 1 exam, but due to the financial constraint, I could not able to do it. At that point, I took the whole scenario as a limitation or precondition on me, and overcoming of this limitation would be the plot of my life. That's what I thought at that point. So as soon as my house job ended, I started working in a hospital and started saving up for this exam. First, I go through the EPIC verification, then bought the UWorld, and then submit the fee of this exam. All of this I did after my house job by working in a hospital and saving up some money from that. I'm mentioning it here specifically because nowadays I see a lot of people who abandon this journey just because they don't have finances for these exams. So for those people, I'm mentioning it here because I was in a similar situation and I took the whole scenario as a limitation or precondition on me and not an excuse that I cannot afford it, so I'm not going to do it. Now let's talk about the resources I used to prepare for USMLE Step 1 exam. Keeping in mind, when I started preparing for it, I was working full-time as a doctor in a tertiary care hospital in anesthesiology department. So it was in my mind कि जॉब भी साथ करनी है, साथ में USMLE की तैयारी भी करनी है और दोनों को साइड बाय साइड लेके चलना है for an extended period of time, because USMLE is not a sprint, it is a marathon. So I started with Board and Beyond videos और साथ में मैंने फर्स्ट एड को पढ़ना स्टार्ट किया और फिर साथ में मैं हॉस्पिटल में अपनी जॉब भी कर रहा था एंड थ्रू आउट बाकी टाइम में मैं यू वर्ल्ड करता रहता था. सो इट टुक मी लाइक विद द जॉब लाइक 6 months to 7 months कि जब मेरा 70% यू वर्ल्ड कम्प्लीट हो गया, मेरी बोर्ड एंड बियॉन्ड की सारी वीडियोस कंप्लीट होगी और एक दफ़ा मैंने फर्स्ट सेट से गो थ्रू कर लिया. एंड आफ्टर दैट आई गेव माई NBME एग्ज़ाम जिसमें मेरा स्कोर अराउंड 200 आया एंड आई थॉट कि अच्छा इट इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, नाउ आई हैव टू इम्प्रूव. उसके बाद मैंने यू वर्ल्ड को कोई 90% किया, मतलब 20% मैंने मज़ीद यू वर्ल्ड किया और मैंने फर्स्ट सेट का एक और गो थ्रू किया, मतलब सेकंड पास ऑफ फर्स्ट एड. फिर मैंने एक और NBME दिया जिसमें मेरा स्कोर अराउंड 208 या 210 के अराउंड आ गया. सो फिर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई. फिर उसके बाद मैंने मज़ीद एक फर्स्ट एड का पास किया, थर्ड पास ऑफ फर्स्ट एड, और मैंने दोबारा मज़ीद 2-3 NBME दिए जिसमें मेरा स्कोर 215 220 के अराउंड आ गया. एंड इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 10 to 11 months मुझे हो गए हुए थे फ्रॉम स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन. और उसके बाद फिर मैंने अपनी एग्ज़ाम की डेट ले ली एंड फाइनली आई गेव द एग्ज़ाम. ऑफ कोर्स दिस होल प्रोसेस wasn't all smooth sailing. My biggest challenge was to prepare for USMLE Step 1 exam along with a full-time job. I was working in anesthesia, which is a critical care specialty. You have to pay a lot of attention to details at workplace and that consumes a lot of your energy and attention. So जब मैं हॉस्पिटल से घर आता था तो now I have to prepare for the USMLE Step 1 exam. I have to do UWorld questions daily. I have to read first aid. So it was a lot of back and forth between work and the USMLE Step 1 exam. When I am free at workplace, so I started doing UWorld questions there as well. So all the time, this whole 2024 year was me spending time like I am just doing the job, I am just preparing for the Step 1 exam. I cut off social media, I just quit everything, I cut off from everything. My whole time was dedicated to just preparing for the Step 1 exam and doing the job and sleep, eat, and the whole cycle was kept on repeating for this whole 1 year. Now let's talk about the exam day experience, like how it was for me, how I felt on the exam day, one day before the exam, even 1 week before the exam. So originally my exam was on 24th of November, but it got cancelled 1 day before the exam. Like I was literally 1 day before the exam and I got the email that your exam has been cancelled because there was some protest going on here in Lahore. Then I rebooked the exam 5 days later on 29th of November. I watched some Dirty Medicine videos. In one of the video he mentioned that 1 day before the exam just go to the gym early in the morning, do some physical activity so that
you'll be tired at night and you can able to sleep. I followed the same strategy, but it did not work for me. I went to the gym early in the morning. I came home. I stopped studying like at 6 p.m. उसके बाद मैं अराउंड 9-10 बजे सोने चला गया हूँ एंड आई एम इन बेड बट आई कैन नॉट एबल टू स्लीप. देयर आर लॉट ऑफ थाट्स कमिंग इन माई माइंड बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम होल 1 ईयर अलॉन्ग विद जॉब. 12 बज गए रात को, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए एंड आई एम स्टिल अवेक. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्लीप बट आई कुड नॉट. इवन 5 बज गए थे सुबह के एंड आई वॉज स्टिल अवेक एंड बस ट्राइंग टू स्लीप बट कुड नॉट. सो आई थिंक 5:30 बजे सुबह मैं सोया हूँ, मेरी आँख लगी है एंड देन आई वोक अप एट 7 इन द मॉर्निंग. 7 बजे मैं अब उठ गया हूँ तो मैंने कहा जस्ट स्क्रू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल go in this exam and clear it no matter what. Anyways, I started the day. मैंने एक लाइट सा नाश्ता किया जिसमें 2 स्लाइस ब्रेड के थे और एक शामी कबाब था, साथ में 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का था. और फिर मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया. मैंने काफ़ी ग्रेनोला बार्स लेके रखी हुई थी ऑन द एग्ज़ाम डे, वो मैंने शॉपर में डाली. और फिर मैंने 2 कप एक हॉट कॉफ़ी के बनवाए हुए थे और 2 कप कोल्ड कॉफ़ी के, उनको मैंने थर्मोसिस थे वो डिफरेंट, वो मैंने शॉपर में पैक किया. मेडिसिन में मैंने पैनाडोल एक्स्ट्रा और इमोडियम ये 2 बस अपने साथ रखी हुई थी, उनको मैंने पैक किया. और आई लेफ्ट द होम अराउंड 8-10 इन द मॉर्निंग. और FC जो है मेरे घर से लाइक 15 to 20 मिनट्स है. 8:30 तक मैं FC कॉलेज में पहुंच गया. वहाँ पर एंट्रेंस पे मैंने चेक इन किया, वहाँ पर एक रजिस्टर में एंट्री करनी होती, वो की उन्होंने हमें एक कार्ड दिया. और फिर हम FC के अंदर आ गए. FC के अंदर प्रोमेट्रिक सेंटर इज़ एट अ डिस्टेंस. प्रोमेट्रिक सेंटर में हम फिर एंटर हुए. वहाँ पर हमारी सारी चेकिंग हुई. उन्होंने देखा कि हमारे पास ये खाने पीने का सामान है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पासपोर्ट है, CNIC है, एग्ज़ाम परमिट है जिस पे हमारा नंबर लिखा हुआ है. तो वहाँ पर उन्होंने हमें एक लॉकर दिया जिसमें मैंने अपनी कीज़ वगैरह रख दी. जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो मेरे पास थे और मेरी खाने पीने की चीज़ें मेरे पास थी. सिर्फ कीज़ वगैरह जो मेरे पास थी एक्स्ट्रा वो मैंने रख दी. फिर हम वहाँ से चेकिंग करवा के एक और बिल्डिंग में एंटर हो गए जो प्रोमेट्रिक की बिल्डिंग थी. वहाँ पर एक वेटिंग एरिया था, एक कॉमन. वहाँ पर मैंने एक टेबल के ऊपर अपना सारा सामान, थर्मोसिस थे मेरा एक शॉपर था इसमें ग्रेनोला बार्स थी, वो मैंने सारी रख दी, मेडिसिन रख दी. और फिर वहाँ पर काउचेस थे, मैं वहाँ पर बैठ गया. उस लाउंज से भी एक रूम था, उस रूम में चेकिंग होती थी. और फिर उस रूम से नेक्स्ट रूम में सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए थे जहाँ पर वो एग्ज़ाम एक्चुअली में होना था. हमारी बारी आई, हम एंटर हुए. वहाँ पर उन्होंने हमारी पिक्चर उतारी, कुछ साइन वगैरह करवाए. और देयर वाज वेरी हाई सिक्योरिटी इन दैट प्रोमेट्रिक सेंटर. सब जगह पर कैमरे लगे हुए थे और वो कैमरे में वॉइस रिकॉर्डिंग भी थी. सो दे वर लिसनिंग टू वट एवर यू आर टॉकिंग देयर. तो हम वहाँ बैठे हुए. फिर लाइक 9:02 या 3 मिनट पे आई वाज इन द एग्ज़ाम सेंटर और मैं कंप्यूटर पे, उन्होंने मुझे अलॉट कर दिया. मैं कंप्यूटर पे जाके बैठा. वहाँ पर मुझे जो मेरा एग्ज़ाम परमिट था उस पर एक नंबर लिखा हुआ था, वो मैंने कंप्यूटर में नंबर एंटर किया तो मेरा एकदम से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया. वेल आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई सॉ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माई फर्स्ट ब्लॉक ऑफ USMLE Step 1 एग्ज़ाम. माई हार्ट वॉज बीटिंग सो मच फास्ट. लिटरली आई वॉज ट्राइंग टू calm down. मेरा दिल इतना तेज से धड़क रहा है. I was like it will come out of my chest. Anyways, I kept going through the first block. जो statements थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी as compared to NBME exam. It was closest possible to free 120 जो कि मैंने लेटेस्ट किया हुआ था. So पहले ब्लॉक के एंड में 3 मिनट बचे हुए थे और मैंने कोई 18 से 20 क्वेश्चन मार्क किए हुए थे. फिर मैंने अपने वो क्वेश्चंस को गो थ्रू करना स्टार्ट किया. सो या आई रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन इन माय फर्स्ट ब्लॉग जिसमें था कि मिसिसिपी एक जगह का मेंशन किया हुआ था उन्होंने. मिसिसिपी इसमें कौन सी फंगाई होती है. सो हिस ऑन द मिस ये निमोनिक मैंने याद किया हुआ था, मतलब हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जो था उसका आंसर था, मैंने वही लगाया हुआ था. बट व्हेन आई वाज रिव्यूइंग इट इन द लास्ट 3 मिनट्स तो आई फेल्ट लाइक मे बी इट इज़ नॉट हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम. मैंने पूरी स्टेटमेंट उसकी पढ़ी एंड आई फेल्ट लाइक मे बी इट इज़ ब्लास्टोमाइसिस बिकॉज चेस्ट की फाइंडिंग बहुत ज़्यादा थी उसमें. सो आई पिक्ड लाइक ब्लास्टोमाइसिस इन द लास्ट मिनट. और वो जैसे ही मैंने वो पिक किया एकदम से मेरा ब्लॉक एंड हो गया एंड आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड. मैंने एक सही चीज़ को गलत पिक कर दिया और एकदम से मेरा ब्लॉक भी एंड हो गया. खैर आई जस्ट टुक अ ब्रेक एट दैट पॉइंट. मैं बाहर आके मैंने हाफ कप जो हॉट कॉफ़ी थी वो मैंने पी, साथ में मैंने एक ग्रेनोला बार खाई. मैंने सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लिया एंड आई जस्ट वेंट इन अगेन. फिर मैंने सेकंड ब्लॉक स्टार्ट किया अपना. सेकंड ब्लॉक वाज अ बिट डिफ़िकल्ट.
हर कोई कहता है कि आपको पूरे पेपर में 2 ब्लॉक डिफ़िकल्ट आते हैं इन 7 ब्लॉक्स, तो मेरा जो सेकंड ब्लॉक था वो डिफ़िकल्ट था। एंड मैंने पहले ही 4-5 क्वेश्चंस करके ना मुझे अंदाज़ा हो गया कि दिस ब्लॉक इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट, सो डोंट पैनिक, इट डज़ नॉट मैटर, यू विल गो थ्रू इट। फिर सेकंड ब्लॉक एंडेड, आई केम आउट अगेन, मैंने 5 मिनट की फिर ब्रेक ली और उसके बाद मैंने उसी ब्रेक में दोबारा मैंने ग्रेनुला बार खाई और मैंने हाफ़ कप जो था हॉट कॉफ़ी के लिया। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन बना लिया कि मैंने हर ब्रेक में आना है, 5 मिनट की मैंने ब्रेक लेनी है और उसमें मैंने ग्रेनुला बार खानी है और एक हॉट कप कॉफ़ी का लेना है। तो इसी तरह कंसेक्यूटिवली मैंने 5 ब्लॉक्स किए। थर्ड ब्लॉक जो था मेरा वो भी डिफ़िकल्ट था, मुझे पहले 5-6 क्वेश्चंस करके अंदाज़ा हो गया था। खैर मैंने उस ब्लॉक को भी पूरा किया, 4-5 मिनट बचे हुए थे, वो मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू किया। मैं जब फिर बाहर आया मैंने ब्रेक ली 5 मिनट की, दोबारा गया। फोर्थ ब्लॉक जो था वो कंपैरेटिवली इजी लगा मुझे, जैसे मेरा फर्स्ट ब्लॉक था। फिफ्थ ब्लॉक भी मैंने इसी तरह किया, वो भी मुझे कंपैरेटिवली इजी लगा। तो जब मेरे 5 ब्लॉक हो गए ना और बीच में मैंने हर ब्लॉक के बाद एक 5-5 मिनट की ब्रेक, मतलब मैंने 20 मिनट्स की मैंने ब्रेक ली हुई थी और मेरी कोई 40 मिनट्स की ब्रेक बची हुई थी। और फिर मैं बाहर आया तो फिर मैंने 15 मिनट की ब्रेक ली। व्हेन आई डिड द 6th ब्लॉक और मेरा एक ब्लॉक बचा हुआ था, तो मैं आई केम फॉर द ब्रेक। मेरे पास कोई 15 मिनट की ब्रेक दोबारा बची हुई थी, तो मैंने वो ब्रेक लिया। एंड व्हेन आई वेंट फॉर माय लास्ट ब्लॉक, 7th ब्लॉक, तब मुझे फील आई कि एम आई गेटिंग डन विद दिस एग्ज़ाम, क्या ये एग्ज़ाम ख़त्म होने जा रहा है। आई एम फीलिंग कि यार दिस इज़ द लास्ट ब्लॉक एंड इट इज़ ओवर, इट इज़ डन, यू विल बी डन एंड डस्टेड, इट विल बी ओवर। सो पूरे दिन में मुझे वहाँ पर आकर थोड़ी अच्छी फीलिंग आई कि समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। एनीवेज आई वेंट इन, आई स्टार्ट द ब्लॉग। देयर वाज अ लॉट ऑफ एथिक्स इन द एग्ज़ाम, आई बिलीव। पहले इतनी ज़्यादा एथिक्स नहीं आती थी, लेकिन इन माई एग्ज़ाम आई फेल्ट लाइक देयर वर 8 to 10 क्वेश्चंस इन एवरी ब्लॉक ऑफ एथिक्स। एंड एथिक्स के बारे में यू आर नेवर श्योर कि आपने सही आंसर पिक किया या आपने गलत आंसर पिक किया। सो दैट ऑल्सो गिव्स यू अ फीलिंग दैट either you will pass or you will not pass, that you are not sure about it. Anyways, जब लास्ट ब्लॉक एंड हो रहा था, लास्ट आखिरी 10 क्वेश्चन से, then again I had a strong feeling कि now this exam is going to end, now this exam is going to end and you will be free. I was seeing कि वैसे टाइम क्लोज हो रहा है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के बाद एकदम से एग्ज़ाम ended and for like 3 to 4 minutes I just sat there and look at the computer that it has ended. So I came out of the exam or I saw other people जो थे, everyone is complaining too much ethics, the paper I don't know कहाँ से पेपर आया हुआ था, it is a difficult paper. I did not talk to anyone. फिर मैंने अपना सामान वगैरह कलेक्ट किया and I just came out of Prometric Center. और प्रोमेट्रिक सेंटर से जो FC का गेट है, there is a like 15-minute walk. I'm just literally walking for those 15 minutes. I am thinking about flashbacks आ रहे हैं मुझे कि पूरा एक साल मेरा था, this all effort came to this exam and now it is finished. फिर 3 weeks के बाद मेरा रिज़ल्ट आया by the end of December. Normally 2 weeks के बाद आता है, तो 3 weeks के बाद आया। उस दिन भी I was going somewhere, I was in the middle of something, I was going to see the venue of a event और रस्ते में मुझे email आई, I was driving that your score report is available and I opened it and it shows PASS that you have passed USMLE step 1. So yeah, it was a feeling that I can't express in words, but I felt so relieved at that moment. And really I felt कि आपने कोई चीज़ दिल से हार्ड वर्क किया हो किसी के लिए और वो फाइनली हुई हो ना, तो you feel good about yourself. I guess I can blabber about this topic the whole day. Now let's end this video and come to the final thoughts and reflections about me going through USMLE step 1 and my experience. First of all, I want to say anyone who thinks about giving USMLE step 1 should not think otherwise. You should give USMLE step 1 exam. Either you want to pursue residency in US or not, because this exam really changes you. It really builds foundation of core medical principles in your mind like never ever by any exam. Secondly, don't limit yourself and abandon this journey altogether. If you feel like you cannot manage finances during your undergraduate period, try to do it in your post graduation period. In the meantime, Pakistan में training start कर लें आप, or you look for jobs in other countries. So just keep in the back of the mind, maybe आपका year of graduation increase हो जाए, but I have seen people with
year of graduation, more than 5 years matching to it. So just don't abandon it. And it is a very beautiful journey of self-enlightenment, I can say, and learning and growing as a medical healthcare professional, I believe. And I strongly believe it that clearing USMLE exams really makes you a better doctor, a good doctor. And lastly, stay focused and resilient. Let me show you something. So I have this cardboard in my room for the whole 1 year, in which I have mentioned Zirak Nasir MD, which I want to be from the core of my heart. And I have mentioned here resilience and focus, because I have listened from a lot of people that if you are pursuing this journey in your post-graduation period, these two words should be in your mind all the time, that you have to be resilient and you have to be focused towards this journey, because it gets a bit difficult in your post-graduation period. But I'm trying my best to pursue it. I will try to make more content related to USMLE journey in my upcoming videos. Until then, I will see you in another video. Bye bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit.